Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now let's start with the topic. So today we are going to discuss about and its classification. Now first of all, instruction. What is the meaning of instruction? Instruction is basically any command, okay, like sit, stand, all these are commands, okay. Such kind of instructions and commands will be given to microprocessor, okay. Why we are giving commands or instructions to microprocessor? Because we want to perform any task by microprocessor. For example, add, subtract, okay, move, load, store. So all these are the instructions. So all these instructions are classified into some categories. If we discuss the types of instruction, then it is majorly classified into 5 categories. First is data transfer, then arithmetic, then logical, branching and control. These are the 5 categories or classifications in which instruction of a microprocessor is classified. Few instructions are used for data transfer, not manipulation, only transfer. Means there is some location A, another location B, whether it is register, whether it is memory, whether it is input, whether it is output port, okay, any location A, any location B. So moving data between A and B. Listen carefully, moving data between A and B comes under data transfer category. Now second is arithmetic instruction, means all kind of arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, increment, decrement, all kind of arithmetic operations classified by arithmetic instruction category. Third is logical instructions. Logical instructions are those instructions in which we can perform logical operations, means and, or, not, rotate, shift, rotate left, rotate right, shift left, shift right, etc., etc. Moving forward is branching instructions. Branching instructions are those instructions in which we can use call, jump, return statements. Means from any location to any other location in between the program. Okay, these branching instructions classified into 2 categories: conditional, unconditional. Means either with condition or without condition. We will discuss all these in detail. And then last is control instructions. Control instructions are those instructions which are responsible for controlling the execution of program. Program की execution को जो control करते हैं, उन instructions को हम control instructions कहते हैं. Okay, so let's start with the data transfer instructions. The first one is data transfer instructions. These instructions move data between registers, memory and registers. Means register to register, register to memory, memory to register. Okay, these instructions copy data from source to destination. What is the meaning of copy? The meaning of copy is the content of source will be there and the content will be copied into destination. Means earlier we have A is equals to 1. If we do A is equals to B, it means B is also equals to 1. Now A is also 1, now B is also 1. It means it is creating a copy rather than moving the value from A to B. It is just creating a copy. Now we have 2 copies, A and B, both are 1. So copy means it is creating another replica.
creating a replica. Replica means copy, duplicate. While copying, the contents of source are not modified. Means what I have just told you, the source, that is a is equals to 1, it is not modified. First a is equals to 1, then a is equals to b, then b is equals to 1. इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले a की वैल्यू 1 थी, जब हमने a को b के इक्वल किया तो b की वैल्यू 1 हो गई, बट a जो सोर्स है आपका वो मॉडिफाई नहीं हुआ, वो वैसा ही है जैसा पहले था. नेक्स्ट इज, now first example of data transfer instructions, that is move, mov. Mov is the mnemonic. MOV is the mnemonic for move instruction. The instruction is move, but it is represented with MOV, this mnemonic. Okay, and this mnemonic has a unique opcode. Opcode means operational code. Okay, all the opcodes depends on the mnemonics. Now in this case, three options are there: RD, RS, M, RS, RD, M. S for source, D for destination. If we write move A, B, means B की वैल्यू A में आएगी. ओके, सोर्स हमेशा राइट पे रहेगा, डेस्टिनेशन हमेशा लेफ्ट पर रहेगा. C इज इक्वल टू A प्लस B. इसका मतलब क्या होता है, A प्लस B की वैल्यू किस में जा रही है, C में. मीन्स सोर्स क्या है, A प्लस बी. ओके, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, A प्लस बी. A प्लस बी की वैल्यू कहां जा रही है, C में. तो डेस्टिनेशन क्या हो गया आपका, C. RD मीन्स डेस्टिनेशन रजिस्टर. R फॉर रजिस्टर, S फॉर सोर्स, D फॉर डेस्टिनेशन. सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर. एग्जाम्पल इज दिस, मूव A, B. Then move M, RS. M, RS means source register. Means now data is moving from a register R to memory M, R. It shows the content of register is moving to the memory. Next is RDM. Means now the source is memory location and destination is a register. It is like MOV R, M. Now memory to register. This instruction copies the content of source register into destination register. Content of source registers are not altered. Altered means change. Okay, source register का कोई भी content change नहीं हो रहा, alter नहीं कर रहे. If one of the operand is memory location, its location is specified by the content of HL register. Now जब हमने 8085 आर्किटेक्चर किया था तो उसमें हमने कुछ रजिस्टर्स पढ़े थे. एक्यूमुलेटर एक डिफॉल्ट रजिस्टर था, उसके अलावा B, C, D, E, H, L. ओके, दीज रजिस्टर्स आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन विच इन सबका कुछ अलग अलग स्पेसिफिक टास्क भी था. तो उसी में अगर हम HL रजिस्टर पेयर की बात करते हैं तो HL रजिस्टर पेयर बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है. HL रजिस्टर इज यूज्ड टू पॉइंटिंग द मेमोरी. मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हम HL रजिस्टर पेयर को यूज करते हैं. वाई रजिस्टर पेयर? बिकॉज मेमोरी एड्रेस इज ऑफ 16 बिट और 16 बिट को स्टोर करने के लिए हमारे को 8 बिट का दो रजिस्टर चाहिए. इंडिविजुअली ये दोनों रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं, तो इसलिए कंबाइन करके हम 16 बिट में इस पूरे के पूरे रजिस्टर पेयर को यूज करते हैं. ओके, सो मूव B, C, मूव B, M. नाउ M is denoted by HL register pair. You will be get to know once you will designing the program. तब आपको इस समझ में आएगा कि HL रजिस्टर में हम मेमोरी कैसे लोड करते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस होते हैं. पहले हम सारी इंस्ट्रक्शंस करेंगे, उसके बाद ही आप प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे. नेक्स्ट इज MVI. नाउ द डिफरेंस बिटवीन MOV एंड MVI इज MOV में हम रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी इस तरह का ट्रांसफर करते हैं. बट इन केस ऑफ MVI इट इज ऑल्सो मूव इंस्ट्रक्शन, but in this move immediate. Immediate means data. Now in this instruction data is there. In this instruction data is there. Only destination and data. There is no source location. Source location नहीं होगी. Why? Because
हम डेटा को इंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, लाइक MVI B,57H. Here H denotes hexadecimal. H का मतलब है hexadecimal. ओके, जो भी नंबर यहाँ पर यूज हो रहा है वो सारा hexadecimal फॉर्म में ही यूज हो रहा है. So MVI B,57. Now 57 is the data that is moved into the register B, and here 57 is the data that is moved into the memory location M, which is pointed using HL register pair. ओके, सो HL रजिस्टर पेयर में जो हमने वैल्यू डाली है वो किसकी होगी, वो इस M की वैल्यू होगी. ओके, नेक्स्ट इज LDA. LDA move. Now see, we have studied move, MVI. Now instruction is LDA. This is a third instruction. Okay, this is the third instruction जो आपकी डेटा ट्रांसफर की ही है. नाउ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है, काम अलग अलग होगा. अगर आपके पास दो रजिस्टर्स या एक रजिस्टर एक मेमोरी इस तरह से दिया हुआ है, मींस आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेंशन्ड है, देन यू विल यूज मूव. अगर आपके पास डेटा और डेस्टिनेशन है, देन यू विल यूज MVI. नाउ इफ you have only memory, आपके पास सिर्फ सोर्स है, डेस्टिनेशन नहीं है, then you will use LDA. So each and every instruction has its unique property that why that particular instruction is being used. What I'm going to explain is, आपके पास n number of instructions हैं. समझिए थोड़ा ध्यान से, listen carefully please. आपके पास n number of instructions हैं, बट आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन कब यूज करनी है वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा. डिसाइड कैसे होगा, क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल एडिशन है, एडिशन करने के लिए आपके पास ऐड इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ कौन कौन से पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, अगर वही पैरामीटर्स तो आप ऐड इंस्ट्रक्शन कर लो. अदरवाइज अगर आपके पास डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है तो ऐड इमीडिएट भी कर सकते हो. मींस एक काम को, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए देयर आर multiple instructions. Now it is depending only on the requirement. Purely it is depending on the requirement that what instruction is going to be used. Second, जरूरी नहीं है कि एक A स्टूडेंट है, एक B स्टूडेंट है. A स्टूडेंट ने जो प्रोग्राम बनाया, लेट उसमें 10 इंस्ट्रक्शन यूज करी अलग अलग और उसने प्रोग्राम बनाया. हो सकता है जो B स्टूडेंट है वो सिर्फ 7 इंस्ट्रक्शन यूज करे और प्रोग्राम बना दे. ओके, अनदर स्टूडेंट C इज देयर, हो सकता है वो 15 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज करे और वो प्रोग्राम बना दे. ऑल दीज प्रोग्राम्स इफ प्रोड्यूसिंग करेक्ट आउटपुट, देन ऑल द प्रोग्राम्स आर करेक्ट. अगर तीनों प्रोग्राम करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तीनों प्रोग्राम ठीक है. हो सकता है एक ने सिर्फ मूव इंस्ट्रक्शंस यूज करी है, एक ने MVI इंस्ट्रक्शन यूज करी है, एक ने LDA इंस्ट्रक्शन यूज करी है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, कोई गलत नहीं है कि उसने मूव लगाई है, इसने MVI लगाई है, उसने LDA लगाई है, इसमें कोई गलती नहीं है. अगर आउटपुट सही आ रहा है, देन इट मीन्स इफ द आउटपुट इज करेक्ट, देन इट मीन्स द प्रोग्राम इज 100% accurate. The program is okay, and when the program is okay, then there is no condition कि आप कौन कौन सी instructions लगाएंगे. Am I clear to everyone? Because it is not depending on the instruction कि कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है. Until unless कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपके पास है तो आप इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही यूज करेंगे जो दी हुई है. बट इफ अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है इंस्ट्रक्शन यूज करने की, इन दैट केस आप किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजीली समझ में आ रही है. ओके, नाउ अभी हमने क्या देखा, पहले हमने पढ़ी मूव, फिर पढ़ी हमने MVI, अब आ गया LDA. Now LDA instruction is load directly into accumulator. LDA instruction means load directly into accumulator and it is followed by 16-bit address. Now इस इंस्ट्रक्शन का पैटर्न कैसा होगा, समथिंग लाइक दैट. LDA एक इंस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद 16-bit का एड्रेस होगा. Now this address is anything. ये हो सकता है 2000 हो, ये हो सकता है 5000 हो, दैट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कौन सी लोकेशन आप यूज कर रहे हो. ओके, प्लस मेमोरी में कौन सा एड्रेस अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा जो एड्रेस है दैट इज 3000 ओनली.
Now what will happen? Now in this case, the memory, this is the memory and here a 3000 location is there and यहाँ पर कोई ऑपरेंड है x. So accumulator के अंदर अब क्या आ जाएगा? x. accumulator में 3000 नहीं आएगा, accumulator में आएगा x. मींस अगर आपको मेमोरी से कोई डेटा उठाकर डायरेक्टली accumulator में डालना है, इन दैट केस आप क्या करेंगे? LDA 3000. ओके, नाउ इन दिस केस अब आपको HL पेयर की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज आपने डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस मेंशन किया. बिल्कुल यही सेम काम आप MOV से भी कर सकते हो, मूव से, बट इन दैट केस उससे पहले आपको HL के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी 3000. तो मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी. एक और इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी ना इसमें, HL में 3000 मूव कराने की इंस्ट्रक्शन. उसके बाद आप मूव कराओगे क्या? A, M. तो M से A में आएगा. M क्या है? 3000. ओके, जो HL से पता लगेगा. इट मींस एक इंस्ट्रक्शन तो ये है, इससे पहले आपको HL की एक और इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी. Now, in computer organization and architecture, you have studied about the type of instruction: 1 byte, 2 byte, 3 byte. Okay. Now, याद है किसी को 1 byte, 2 byte, 3 byte इंस्ट्रक्शन? अगर याद नहीं है, देन आप आर्किटेक्चर की वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा. ना उसमें क्या है बेसिकली 1 byte, 2 byte, 3 byte में? If there is only opcode, then it is 1 byte. Opcode plus 8-bit operand, then 2 byte. Opcode plus 16-bit operand, then it is 3 byte. Okay, then it is 3 byte. This instruction is any single opcode and 16-bit operand. So it is of, it will take how many bytes in the memory? जब आप इसको स्टोर करेंगे तो मैं 3 byte. Very good. It will take 3 bytes in the memory. And the previous one, MOV, one byte. Now see how MOV is 1 byte. How? Because MOV में आपका क्या है? एक तो इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड है. ओके, ऑपकोड के साथ ऑपरेंड है. ऑपरेंड क्या है? रजिस्टर. रजिस्टर हमारे पास ऑलरेडी पहले डिफाइंड है. मूव AB, मूव AC, मूव CA, मूव BA, सारे रजिस्टर्स डिफाइंड है. तो हमने हर एक रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑपकोड डिजाइन कर दिया है. नाउ इन दिस केस मूव का ऑपकोड नहीं बनेगा, ऑपकोड बनेगा मूव A, B, A, C, A, D, ऐसे B, A, B, C, B, D, B, E. सो आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मूव है वो बहुत सारी हो जाएंगी. Clear? And this complete is having a opcode. Move A, B और move B, A. दोनों का opcode अलग अलग होगा. In this case, MVI, the instruction will be of how many bytes? 1 byte, 2 byte, 3 byte. 2 byte. Instruction is of 2 byte. Because as I told you earlier, MVI के साथ रजिस्टर इसको फिक्स कर देंगे हम. डेटा कैन बी एनीथिंग. मैं अगर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं, हो सकता है मैंने डेटा 32 डाल दिया, आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, आपने 23 डाल दिया, किसी ने इंस्ट्रक्शन में डेटा 51 डाल दिया, किसी ने 15 डाल दिया. सो डेटा कैन बी एनीथिंग. आप डेटा को फिक्स नहीं कर सकते, आप रजिस्टर्स को फिक्स कर सकते हो. व्हाई सो? बिकॉज रजिस्टर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, हमें पता है ABCDE HL. ओके, सो MVI A, MVI B, MVI C, ये एक ऑपकोड देगा आपको, 8 बिट का ऑपकोड और 8 बिट का डेटा. क्लियर? LD is of 3 byte. Now see, content of memory location specified by a 16-bit address in the operand are copied to the accumulator. Okay, again source content are not altered. Now this is common with every instruction. Okay, until unless, listen carefully, until unless the source and destination both are same.
अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर सेम है तभी आपका जो कंटेंट है वो ऑल्टर होगा, अदरवाइज वो कंटेंट ऑल्टर नहीं होगा। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? मूविंग फॉरवर्ड इज LDAX. Now difference between LDA और LDAX is LDA में हम एक्यूमुलेटर यूज कर रहे थे, ओके, LDA में हम एक्यूमुलेटर यूज कर रहे थे, और LDAX में अब हम इनडायरेक्टली किसी रजिस्टर को यूज करेंगे और उस रजिस्टर के थ्रू एक्यूमुलेटर में डालेंगे। नाउ सी आइदर B और D, ओके, सी LDAX और नेक्स्ट आएगा हमारे पास LXI, ओके। LDA में हमने एक्यूमुलेटर यूज किया, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम B रजिस्टर पेयर और D रजिस्टर पेयर यूज करें। LXI में आपके पास HL रजिस्टर पेयर ऑलरेडी फिक्स होता है, सो हमारे पास सभी रजिस्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन आ गई लोड करने की, ओके। नाउ इट इज लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। प्रीवियस वन में लोड डायरेक्टली इनटू एक्यूमुलेटर था, अब नाउ इन दिस केस इनडायरेक्ट। व्हाई? बिकॉज द डेटा इज इन either B or D, what you are using, for example instruction is LDAX B, so अभी कंटेंट कहां है? B में M है, M की लोकेशन जो है दैट इज, जिस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं दैट इज 3000, तो हमें 3000 में कुछ X है जो हमें डालना है, ओके। चलो X नहीं लेके यहाँ पे Y ले लेते हैं बिकॉज LDAX में कंफ्यूजन ना हो। लेट दिस इज अ Y। फर्स्ट ऑफ ऑल this 3000 is 3000. This is in the register pair BC or DE, whatsoever you are using. In this instruction we are using B, so B और C दो रजिस्टर यूज होंगे जिसमें 3000 ये आएगा। 3000 ये है रजिस्टर का कंटेंट। अगर हम रजिस्टर के कंटेंट को डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डालते हैं तो ये तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है कि ये ऑपरेंड नहीं है बल्कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऑपरेंड है, और यहां पर हमारे पास ऑपरेंड क्या है? Y 3000 के ऊपर जो लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। मींस जो कंटेंट है B के दैट इज नॉट द ऑपरेंड बट द कंटेंट ऑफ B गिव्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ओके। एंड हियर द X इज यूज्ड। This X denotes register pair. किसी भी इंस्ट्रक्शन में जहां पर भी X लिखा होगा इसका मतलब वो रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। जैसे अगर हम LXI की बात करेंगे आगे जाके तो X लगा हुआ इंस्ट्रक्शन के बीच में, इसका मतलब ये सिंगल रजिस्टर नहीं, दो रजिस्टर, 8-8 बिट के दो रजिस्टर लेगा, H और L, ओके। नाउ read it. Content of designated register pair point to a memory location. जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट हो रही है वो किसी रजिस्टर पेयर में आएगी। This instruction copies the content of that memory location into the accumulator. Content of memory location into accumulator, but not directly, indirectly. The content of either the register pair or the memory location are not altered. जो भी सोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा। Next is LXI, which I told you. Again, X है means register pair. X means register pair. In this case, by default आप यहां पर H, B और D कोई भी लिख सकते हो। LXI H, LXI B, LXI D तीनों के लिए अलग अलग ऑपकोड होगा। उसके बाद आपके पास 16 बिट का डेटा है, तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की हो जाएगी? This instruction is of how many bytes? 3 bytes. Very good. This instruction is again of 3 bytes. One is for this, one is for this, and one is for this. Okay? Now, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। LXI क्या कर रहा है? रजिस्टर पेयर यूज कर रहा है। X है रजिस्टर पेयर यूज कर रहा है। L मतलब लोड करना है। ओके, लोड रजिस्टर पेयर। X रजिस्टर पेयर हो गया। I मींस इमीडिएट। इमीडिएट मतलब जो भी आपके पास कंटेंट यहाँ दिया हुआ है वहां से आपको लोड करना है।
इंस्ट्रक्शन लोड्स 16 बिट डेटा इन द रजिस्टर पेयर। सो ये जो 2034 है, HL के अंदर क्या आ जाएगा? 2034। ओके, जब हम इसके बाद मूव इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, मूव B, M, अब क्या होगा? जो अभी तक हम कह रहे थे कि मेमोरी से मूव कराना है, लाइक दिस इज द लोकेशन 2034 और इसके ऊपर डेटा है कोई T। ओके, नाउ रजिस्टर B विल कंटेन T आफ्टर दिस। मीन्स दो इंस्ट्रक्शन होंगी, पहली इंस्ट्रक्शन ये होगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन आपके पास ये होगी। व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, HL pair contains 2034 and then move B, M will do what? M means HL pair. M means HL pair। तो अब क्या हो रहा है? M मतलब वो HL pair की जो लोकेशन है उसके कंटेंट की बात कर रहा है, that is T। Now T will be moved from this location to B। Okay, I just told moved, but it is actually copied। Okay, the instruction is move, डेटा ट्रांसफर करना है इसलिए हमने मूव लिखा है, बट इन एक्चुअल इट इज कॉपीड। मींस डेटा यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, अब उसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी। ओके, नाउ एक चीज समझिए, जो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, वी हैव टू इंस्ट्रक्शंस LXI H, 2034 and move B, M। Okay, let this is a memory location in which the program will be write। इस मेमोरी में आप प्रोग्राम लिखेंगे and let the first location is 2000। okay, so पहली लोकेशन, अब ये कितनी है? 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। LXI H के लिए एक ऑप कोड होगा, उसके बाद 20 फिर 34 फिर मूव B, M के लिए एक ऑप कोड होगा। ओके, लेट LXI H के लिए जो ऑप कोड है दैट इज 00। सो मेमोरी में हम यहाँ पहली लोकेशन लिखेंगे 00, जो क्या बताएगा? LXI H। देन लोअर पेयर, लोअर एड्रेस दैट इज 34, देन हाइयर एड्रेस दैट इज 20। उसके बाद मूव B, M, लेट इसका कोड हम मान लेते हैं अभी 77। सो 3 बाइट का मतलब क्या हुआ? 2000, 2001, 2002, 3 लोकेशन लिए मेमोरी पर। 1 बाइट का मतलब क्या हुआ? मेमोरी पर सिर्फ एक लोकेशन में सेव हो गई है। सो ये जो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन जब आप सेव कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो मेमोरी में प्रोग्राम कितना स्पेस लेगा। सो अगर आपके पास कंडीशन हो, लिसन केयरफुली, इफ यू हैव कंडीशन दैट यू हैव टू मिनिमाइज द प्रोग्राम लेंथ, तो आपको 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस मिनिमम करनी होगी। इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मेमोरी विद यू, कि आप कितनी भी मेमोरी यूज कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, देन देयर इज नो कंडीशन कि आपको 3 बाइट इंस्ट्रक्शन यूज करनी है या नहीं करनी है। Am I clear to everyone? I think अभी तक हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, जो भी कुछ किया है, वो सबको समझ में आ गया होगा। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.